तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ये कहते हुए कि वो गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करने के लिए बुलडोजर्स भेजेंगे। केटीआर और हरीश राव को चैलेंज किया है कि अगर वो उसे रोकना चाहते हैं तो बुलडोजर के सामने लेट जाएं। हैदराबाद के पुराने शहर में तारीखी चार मीनार के दामन में राजीव गांधी सद्भावना प्रोग्राम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़रा केटीआर और हरीश राव पर निशाना साधा और कहा कि दोनों इस बात से खौफजदा हैं कि कहीं उनके फार्म हाउस पर कोई बुलडोजर ना चल जाए। उन्होंने कहा कि हरीश राव और केटीआर के फार्म हाउस की तफसीलात के लिए एक कमेटी भेजी जाएगी। दोनों मूसी प्रोजेक्ट को रोककर अपने घरों की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने केटीआर और हरीश राव को चैलेंज किया है कि अगर वो बुलडोजर रोकना चाहते हैं तो बुलडोजर के सामने लेट जाएं। उनका कहना था कि तालाबों और नालों पर कब्जा करने वाले अफराद हाइड्रा से खौफजदा हैं। गरीबों में से कोई भी हाइड्रा से नहीं डरता। जिनके पास इजाज़त है उन्हें हाइड्रा से डरने की ज़रूरत नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकाम की जानिब से तफसीलात पूछे जाने पर सभी को अपने दस्तावेज़ात दिखाने चाहिए। ఒక్కడు కూడా వస్తలేడు. బుల్డోజర్ ఖాళీగా పెట్టినా బుల్డోజర్ ఎప్పుడొస్తో అడ్డం పండుతాం అంటుండు బామార్దులు బిల్లా రంగాలు. నేను పిలుస్తున్నా ఎప్పుడొచ్చి పండుకుంటారో చెప్పు. బుల్డోజర్ను పంపిస్తా మా మహేష్ గౌడ్ గారిని ఎక్కి పంపిస్తా దాని మీద. ఒకవేళ మా మహేష్ గౌడ్ గారికి ఇప్పుడు పీసీసీ ఉంది కాబట్టి మా హనుమంత్ అన్నకు అడుగుతా, రిక్వెస్ట్ చేస్తా. బుల్డోజర్ నడిపే బాధ్యత మా హనుమంత్ అన్నకి ఇస్తా. బిల్లా రంగాలు ఇద్దరు వచ్చి బుల్డోజర్ ముందర పండుకోవాలి. అన్ని లంగ నాటకాలు, దొంగ మాటలు. వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్లను కాపాడుకోనికే ఇవన్నీ ముసుగేందుకు? నీ ఫామ్ హౌస్ తప్పుడుదో కాదా పోదంపా. ఆడికొస్తా ఈడికొస్తా అంటున్నావు కదా, జన్వాడకు వస్తా నేను. నీ ఫామ్ హౌస్ తప్పుడుదా కాదా? అక్రమంగా నిర్మించుకున్నావా లేదా? బుల్కపూర్ నాలాను ఆక్రమించుకున్నావా లేదా? ఇవాళ అందరినీ తీసుకొని వస్తా. మా గీతక్కను కూడా తీసుకొని వస్తా. అక్క అయితే పెద్ద మనిషే కదా. బుల్కపూర్ నాలాను ఆక్రమించుకొని రోడ్ వేసుకొని ఫామ్ హౌస్ కట్టుకోలేదా? 111 జీవోని ఉల్లంఘించి 100 కోట్లు పెట్టి 50 ఎకరాల పెద్ద భవంతి నిర్మించుకున్నాడు. ఎక్కడ బుల్డోజర్కి అక్కడికి వస్తుందో అని గిక్కడొచ్చి నాటకం ఆడుతున్నాడు. చూస్తున్నా నాటకం మొత్తం నాటకం చూస్తున్నా. అజీజ్ నగర్లో హరీష్ రావు ఫామ్ హౌస్ లేదా? పోదంపా ఆడికి వస్తా. మూసీ కాడికి వస్తావా? మురికివాడకు వస్తావా? ఇగో ఆడికే వచ్చిన ఈడేడు చార్మినార్ దగ్గరనే ఉన్నాడు, పక్కనే ఉంది కదా. అది దాటుకొనే యువతలకు వచ్చిన కదా హరీష్ రావు. సవాలు ఇసురుతున్నాడు ఆయన, నువ్వు వస్తావా అని. నీలాంటి చెప్పులు మోసేటోళ్ళు కాదు. ఫామ్ హౌస్లో బోర్లో వండుకున్నాను రమ్మని నేను వస్తా. నువ్వేంద్ర భయ్ చెప్పులు మోసేటోనివి? నీదో స్థాయి, నీదో బతుకు. ఆ ఎల్ల మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు దయదలిచి హవాయి చెప్పలున్న నిన్ను మంత్రిని చేస్తే ఇవాళ నీకు అజీం ఈడ ఉస్మాన్ సాగర్ పక్కన ఫామ్ హౌస్ వచ్చింది ఎకరాల. ఏముండే అంతకుముందు నీ సంగతి నాకు తెలియదా? ఆయన చెప్తుండే నేను వెనకంగా తొంగి చూసినా అని. కానీ నేను చూసి ఉండొచ్చు, కానీ నీలాక దొంగతనాలు చేయలే. నా ఇంటి ముందర వచ్చి చేతులు కట్టుకొని నిలబడి బిచ్చమెత్తుకున్న రోజులు మర్చిపోయినావా? చెప్పులు కొనుక్కోవాలన్నా నా ఇంటికాడికి వచ్చి నా ముందర చేతులు కట్టుకొని నిలబడే రోజులు మర్చిపోయినట్టున్నాడు అప్పుడే. అందుకే ఇవాళ వాళ్ళ బాధ అంతా, భయమంతా వాళ్ళ ఫామ్ హౌజులు కూల్తాయని అందుకే హైడ్రాను వ్యతిరేకిస్తుండ్రు. చెరువులు ఆక్రమించుకోకపోతే, 111 జీవోను ఉల్లంఘించకపోతే మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు? హైడ్రా ఇంతవరకు మూసీ వైపు మళ్ళీ కూడా చూడలేదు. మూసీ పునరుజ్జీవన పథకం వేరే, హైడ్రా వేరే. హైడ్రా హైదరాబాదు నగరంలో गोशमेल के बीजेपी रुकनी असेंबली राजा सिंह ने सिकंदराबाद में मोतियाला मंदिर में एहतजाज करने वाले अफराद पर पुलिस के लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत की है। हिंदू तंजीमों ने हफ्ते को मोतियालम्मा मंदिर पर हमले के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी। सुबह से पुरअमन एहतजाज जारी था, ताहम दोपहर ढलते ढलते मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद मंदिर के करीब इकट्ठा हुई और शरअंगेजी करने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोका तो पुलिस पर चप्पल, कुर्सियां और पानी के पैकेट फेंके गए। मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई परेशान करने वाली बात है कि जब मजहबी जज्बात पर हमला किया जाता है, मूर्तियों की बेहुरमती की जाती है, तो हिंदू भाइयों को पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाने की भी इजाज़त नहीं मिलती है। उन्होंने पूछा है कि लाठीचार्ज किसके हुक्म पर किया गया था।
मंदिर की बेहुरमती के जिम्मेदारों को कार्रवाई का सामना करना चाहिए, इंसाफ के मुतलाशी अकीदतमंदों को नहीं। राजा सिंह ने कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की खुशामदना सियासत की एक वाज़ेह मिसाल है, जहां अक्सरियत के खदशात को मुसलसिल नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा है कि अकीदे पर होने वाले इस हमले के लिए एहतसाब और इंसाफ का मुतालबा किया जाता है। हिंदू भाई खामोश नहीं रहेंगे। तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने वाज़ेह किया है कि ग्रुप 1 मेंस के इम्तिहानात हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक ही मुनक्किद किए जाएंगे। पिछले 4 दिनों से उम्मीदवार ग्रुप 1 के इम्तिहानात को मुलतवी करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और हैदराबाद में कशीदगी उस वक्त देखी गई थी जब हजारों उम्मीदवार सड़कों पर उतर आए थे और इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे थे। तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने हफ्ते को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ये वाज़ेह किया है कि हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक ही इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। इम्तिहानात के इनेकाद के लिए इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इम्तिहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अगर उम्मीदवारों को हाईकोर्ट के हुक्म पर एतराज़ होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। डीजीपी ने मुतनब्बा किया है कि एहतजाज के नाम पर सड़कों पर उतरने वाले और लोगों को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तेलंगाना पुलिस का मकसद अमन व अमान को बरकरार रखना है। तेलंगाना के जंगांव में एक कार तालाब में डूब गई। मुकामी लोगों ने 2 अफराद को बचा लिया। जराये ने बताया कि कार चलाने की मशक के दौरान एक कार जंगांव के बदकम्मा कुंटा में डूब गई, लेकिन मुकामी लोगों ने 2 अफराद को बचा लिया। बताया गया है कि गाड़ी तालाब के करीब बेकाबू हो गई और तालाब में डूब रही थी। ड्राइवर और मुसाफिर दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद की। मुकामी लोगों ने डूबती हुई कार को देखा और फौरन उनकी मदद करते हुए दोनों को गाड़ी से बाजियाब कर लिया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने एक सेल्फी वीडियो के जरिए वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात का वक्त मांगा है। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों का एहतजाज जारी है। वह हुकूमत से इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने एक सेल्फी वीडियो के जरिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात का वक्त मांगा है। उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि जब तक अदालत की जानिब से तमाम मामलात को वाज़ेह नहीं कर दिया जाता, हुकूमत ग्रुप 1 मेंस के इम्तिहानात को मुलतवी कर दें। जय तेलंगाना। This is the price what we have paid for Rahul Gandhi. We have elected you. We have elected your government here because on the main issues, jobs. And this is what the price we are paying now. We are just asking you a genuine demand of postponing exams for a month. We are not asking you to give your property, or we are not asking to your government to give something else than that. We are just asking you to postpone an exam for a month. But you, instead of not postponing it and instead of not listening to that, your government has done a lathi charge on me. This is the word. This is what the price we have paid. My parents have paid for voting you. This is what it has been done. It has been happening here since this afternoon in Ashok Nagar. तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने झारखंड पीसीसी सदर एम केशव व दीगर कायदीन के साथ इंतखाबी हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया। झारखंड असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जो कि 2 मरहलों में मुनक्किद होंगे। कांग्रेस इत्तेहादी जमात जेएमएम के साथ इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने झारखंड इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुबस्सिर मुकर्रर किया है। वो कल रात झारखंड पहुंचे। उन्होंने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर एमएच केशव, साबिक छत्तीसगढ़ पीसीसी के चीफ मोहन मार्कम व दीगर कायदीन के हमरा इंतखाबी हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया और ये वाज़ेह किया है कि कांग्रेस पार्टी झारखंड असम्बली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंबरपेट पुलिस हदूद में एक ज़ईफ मियाँ बीवी का बेरहमाना कत्ल कर दिया गया। जराये ने बताया है कि अंबरपेट पुलिस हदूद के साई बाबा नगर के रहने वाले 80 साला लिंगा रेड्डी और उनकी बीवी 75 साला परमीना की नाश अपने घर में खून में लथपथ पाई गई। घर से सोना भी गायब था। शुबा किया जा रहा है कि घर में चोरी करने की गर्ज से आए सारिकों ने जोड़े का कत्ल किया होगा और सोना लेकर फरार हो गए।
इतना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान करते हुए अशोकनगर पर तुलबा के साथ धरना दिया। हैदराबाद के अशोकनगर में ग्रुप 1 के उम्मीदवारों का एहतजाज पिछले 3 दिनों से जारी है। वो ग्रुप 1 मेंस के इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा लेकर एहतजाज कर रहे हैं। मरकज वजीर बंडी संजय कुमार ने तुलबा की हिमायत का ऐलान किया और उनसे मिलने अशोकनगर पहुंचे। दरियासना पुलिस ने एहतजाजी तुलबा को रोकने की कोशिश की और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई। बंडी संजय कुमार ने उम्मीदवारों के साथ अशोकनगर पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। बंडी संजय ने कहा कि वो उस वक्त तक अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे जब तक ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता। पुलिस ने हॉस्टल से अशोकनगर चौराहा पहुंचने वाले तुलबा को रोकने के लिए सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए थे, लेकिन पुलिस की पाबंदियों को उबूर करते हुए एहतजाजियों की एक बड़ी तादाद अशोकनगर चौराहे के करीब इकट्ठा हो गई। दरियासना बंडी संजय कुमार ने चलो सेक्रेटरीट रैली की कॉल दी और जब वो ग्रुप 1 उम्मीदवारों के साथ सेक्रेटरीट की सिर्फ जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें इंदिरा पार्क पर रोक दिया। बंडी संजय कुमार समेत कई एहतजाजियों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मशहूर शायर सलाउद्दीन नैयर ने तेलंगाना हुकूमत से उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ करने और सहाफ़ियों के साथ ताउन करने का मुतालबा किया है। नामवर शायर व उर्दूदान सलाउद्दीन नैयर ने रियासत तेलंगाना में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा देने का ऐलान करने के बावजूद उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम न करने पर नाराज़गी ज़ाहिर की। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी में अपने महाना रिसाला खुशबू का सफ़र की कॉपी जमा करवाने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद से उर्दू का कोई पुरसान हाल नहीं है और सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने उर्दू सहाफ़ियों के लिए माली एआनत की स्कीम मुतारिफ़ करवाई थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस तरह की कोई स्कीम मुतारिफ़ नहीं करवाई है। सहाफ़ियों के बेशुमार मसाइल हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है। सलाउद्दीन नैयर ने कहा कि साल में एक बार सहाफ़ियों को रकम दी जाती थी, लेकिन पिछले 10 महीनों से रकम की इजराई नहीं की गई है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस बात पर तवज्जो दें और उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करें। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने किसानों को रैतु भरोसा स्कीम के तहत 10,000 रुपये न देकर धोखाधड़ी की है। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव की जानिब से किसानों को रैतु भरोसा न दिए जाने के ऐलान पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि रेवंत रेड्डी ने किसानों को रैतु भरोसा स्कीम के तहत 10,000 रुपये न देकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। रेवंत रेड्डी को अपनी नाकामी पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका कहना था कि किसान यकीनी तौर पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बगावत करेंगे। केसीआर ने कोरोना वबा के दौरान और जब रियासत के लिए कोई आमदनी का जरिया नहीं था तब भी किसानों को रैतु बंधु दिया था, लेकिन रेवंत रेड्डी के पास मूसा नदी की सफाई के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से जायद रकम है, लेकिन वो किसानों को 15,000 रुपये नहीं दे पा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि किसानों को परेशान किया जा रहा है, कर्ज माफी के मामले में भी धोखा दिया गया है और अब रैतु भरोसा को लेकर भी किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत से वादे के मुताबिक किसानों को रैतु भरोसा देने का मुतालबा किया है, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज करने का इंतबाह दिया है। ఇప్పుడే తెలుస్తున్నది తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు ఈ వానకాలం రైతు బంధు ఇయ్యమన్నారట. ఇప్పుడే తెలుస్తున్నది ఈ వానకాలం రైతు బంధు ఇయ్యము అని తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు సావు కబురు సల్లగా చెప్పిండ్రు అని ఇప్పుడే మీడియా మిత్రులు ఎవరో చిట్టి పంపిండ్రు నాకు. రేవంత్ రెడ్డి గారు క్షమాపణ చెప్పాలి, ముక్కు నేలకు రాయాలి. నువ్వేం చెప్పినవే బాబు, డిసెంబర్లో ఇవో ఇప్పుడైతే 10,000 మేము వస్తే 15,000 రైతు బంధు అని మాట్లాడిండు రేవంత్ రెడ్డి. 15,000 కాదు కానీ ఉన్న 10,000 కూడా ఇవ్వకుండా రైతులకు మోసం చేసినందుకు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెంపలేసుకొని ముక్కు నేలకు రాసి రైతులకు క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. ఎట్లా ఇయ్యవు, ఎందుకు ఇయ్యవు? పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడినావు కదా, ఇది ప్రజల్ని మోసం చేయడం కాదా, రైతుల్ని వంచడం కాదా? 15,000 రైతు బంధు ఇస్తా అని చెప్పి ఇవాళ రైతుల్ని మోసం ఎట్లా చేస్తామని నేను అడుగుతా ఉన్నా. రైతులు రేపు తిరగబడతారు మిమ్మల్ని.
ఇంత దుర్మార్గమా? ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కరోనా ఉన్న సమయంలో కూడా, రాష్ట్రానికి ఆదాయం లేని సందర్భంలో కూడా 2 సంవత్సరాలు కరోనా వచ్చింది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయం బాగా తగ్గిపోయింది. కరోనా సంవత్సరాల్లో కూడా కేసీఆర్ గారు రైతు బంధు ఇచ్చిండ్రు. కరోనాలో కేసీఆర్ ఇస్తాడెట్లా? ఇప్పుడు అన్నీ బాగున్నాయి కదా, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇయ్యడెట్లా? 1,50,000 కోట్ల రూపాయలతో మూసి సుందరీకరణ చేస్తా అంటాడు రేవంత్ రెడ్డి. రైతులకు 15,000 ఇవ్వడానికి లేవా నీకు? పేద రైతులకు 15,000 ఇవ్వడానికి నీకు లేవా? 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు నీకు మూసీకైతే ఉంటాయి పైసలు, ఈ రైతులకు 15,000 ఇవ్వడానికి పైసలు లేవా? ఎందుకు రైతులంటే అంత పగ? ఎందుకు రైతులను ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నావు? రుణమాఫీ మీద రైతుల్ని మోసం చేసినావు, బోనస్ మీద రైతుల్ని మోసం చేసినావు, ఇవాళ రైతు బంధు విషయంలో కూడా రైతుల్ని మోసం చేస్తున్నావు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వాన్ని వదిలేది లేదు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా వానకాలం 15,000 రూపాయల రైతు బంధు ఇవ్వాల్సిందే. ఊర్కోం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైతుల పక్షాన పోరాటం చేస్తుంది. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ మంత్రులను, ముఖ్యమంత్రులను, ఎమ్మెల్యేలను ఎక్కడికక్కడ నిలదీస్తాం. ఈ సందర్భంగా రైతులకు కూడా చెప్తున్నాం, రైతు బంధు ఎగబెడతా అని చెప్పిన ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎక్కడికక్కడ నిలదీయాలని చెప్పి కూడా మేము ప్రజలకు పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर और एमएलए हरीश राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक लोगों को उकसा रहे हैं। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हफ्ते के रोज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बीआरएस कायदीन केटीआर और हरीश राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कलेश्वरम, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा और दीगर प्रोजेक्ट्स के नाम पर 10 लाख करोड़ रुपये लूटे गए हैं। केटीआर पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि वो 100 झूठ बोलकर इख्तिदार में आए हैं और उन्होंने ये सोचा था कि असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 होने वाले बीआरएस कायदीन किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन वो सड़कों पर घूम रहे हैं और मूसी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने नलगुंडा में फ्लोराइड के मसले का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत से लोग हैं जो बीमार पड़ गए हैं और कई बीमारियों में मुब्तला है। एसटीपी इस मसले का हल नहीं है, उन्हें साफ पानी मुहैया करवाया जाएगा। बीआरएस एमएलए केटीआर ने इल्जाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और एमपी बंडी संजय कुमार मिलकर रियासत में बेरोजगार नौजवानों के मसले पर ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी एमपी बंडी संजय कुमार की जानिब से ग्रुप 1 उम्मीदवारों के साथ एहतजाज करने और उनकी हिमायत का ऐलान करने पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने बंडी संजय कुमार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने गुज़िश्ता साल पेपर लीक किए जाने का हवाला देते हुए बंडी संजय कुमार से पूछा कि वो आखिर ग्रुप 1 के बारे में क्या जानते हैं। केटीआर का इल्जाम है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार मिलकर रियासत में बेरोजगार नौजवानों के मसले पर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने ग्रुप 1 उम्मीदवारों की हिमायत करते हुए एहतजाज करने वाले बीआरएस के कायदीन को गिरफ्तार करने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि बीआरएस के रहनुमाओं को गिरफ्तार करते हुए उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके दोस्त बंडी संजय कुमार के लिए हिफाजती इंतजाम किए गए थे। केटीआर ने ग्रुप 1 के उम्मीदवारों का मसला हल करने और उन्हें बातचीत के लिए बुलाने का मुतालबा किया है। वजीर बराए माल और अमकना पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने पहले मरहले में इस माह के आखिर तक रियासत के हर हल्के के लिए 3,500 तक 4,000 मकानात की मंजूरी देने का ऐलान किया है। वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अगले 4 सालों में इंदिरा हुकूमत का हदफ है कि रियासत के तमाम मुस्तहिक गरीबों के लिए मकानात तामीर किए जाएं। अगले 4 सालों में हुकूमत कम से कम 20 लाख घर तामीर करवाएगी। उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस महीने के आखिर तक रियासत के हर हल्के के लिए पहले मरहले में 3,500 तक 4,000 मकानात की मंजूरी दी जाएगी। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत हर वो शख्स जो अहल हो, चाहे वो किसी भी ज़ात का हो, किसी भी मजहब का हो या फिर किसी भी इलाके का हो, हुकूमत की ख्वाहिश है कि उसे घर फराहम किया जाए और वो इसके लिए मरकजी हुकूमत से फंड्स मख्तस करने की भी दरख्वास्त करेंगे। सिकंदराबाद में मुतियालम्मा मंदिर में मूर्ति की मुबैना तोड़फोड़ के बाद बीएचपी और बजरंग दल ने बतौर एहतजाज रियासत बंद मनाया। सिकंदराबाद के कुमारीगुड़ा में वाक़ मुतियालम्मा मंदिर में 14 अक्टूबर को एक शख्स ने मुबैना तौर पर
मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद कशीदगी बढ़ती जा रही थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हफ्ते को रियासत गिर बंद का ऐलान किया था। दीगर हिंदू तंजीमों की जानिब से भी एहतजाज की हिमायत की गई थी। हैदराबाद और तेलंगाना के कई मुकामात पर पुरअमन रहा। कारोबारी मराकज बंद देखे गए। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मूसा नदी की सफाई और बहाली के नाम पर आवाम का पैसा लूटने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। साबिक वजीर केटीआर ने पार्टी के अराकीन असेंबली और अराकीन कौंसिल के साथ हैदराबाद के नागौल में एसटीपी का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नागौल में मुल्क का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किया गया है और वहां का साफ पानी नलगुंडा जिले को सरबराह किया जाता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें एसटीपीज को सही तरीके से चलाना चाहिए। मूसी प्रोजेक्ट पर तबसरा करते हुए केटीआर का कहना था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मूसा नदी की सफाई और बहाली के नाम पर आवाम का पैसा लूटने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। जो काम 26,000 करोड़ रुपए से किया जा सकता है, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि उस काम के लिए वो 1 लाख करोड़ रुपए से जायद रकम खर्च करेंगे। केटीआर का कहना था कि हाइड्रा के नाम पर बुलडोजर के जरिए धमकियां दी जा रही हैं और पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।